Okay, so yesterday we started the chapter light, in which we discussed what is light. Light is a form of energy that enable us to see the objects. So we can only see the objects due to the light. The second thing we discussed, that the light, it always follow a straight path, that is the rectilinear propagation of light. Okay, so for that मैंने आपको कल बताया था एक्टिविटी, किसी ने परफॉर्म की घर पे? हैव यू ट्राई टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट होम? तो आई टुक दिस ट्यूब, यू कैन टेक एनी ट्यूब. ठीक है, तो मैंने ये पेपर से बनाई है. यू कैन ट्यूब रबर ट्यूब्स आल्सो, टेक रबर ट्यूब्स आल्सो. सो यू जस्ट हैव टू सी थ्रू दिस ट्यूब like this, so you are able to see the things, right? A slight bend in this tube, that means you are bending the direction of the light that is entering this tube. Okay, so now I am not able to see anything. Why? Because the path of the light is now disturbed. Okay, so light, it always travels in a straight line. By bending this, we have bended the direction of the light, so that's why we are not able to see anything. Okay, next we discussed about the reflection of the light, where I said that the light, after striking a smooth and the polished surface like mirror, it bounces back. That means it retraced its path. तो जहां पर भी ये जो इंसिडेंट रे है, ये मिरर को स्ट्राइक करेगी, वहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करनी होती है. ओके, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. The angle between the incident ray and the normal is known as angle of incidence, and the angle between the normal and the reflected ray, that is known as angle of reflection. According to the laws of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection, and the incident ray, reflected ray and normal, they all lie in same plane. This is the second law of reflection, right? So we did these laws, and after that we discussed about the image formation. तो हमने दो तरह से images देखी थी, real image and the virtual image. In case of the real image, ठीक है, जो real image बनती है वो कैसी बनती है? That can be obtained on the screen, and that is inverted. Okay, उल्टी बनेगी, inverted बनेगी, right? And that is formed on the same side of the mirror. Mirror की same side पे बनेगी. And for the virtual image, virtual है तो यहाँ पर जो आपकी image है, right, that can't be obtained on the screen, and it will be erect, सीधी होगी. Okay, and ये mirror के पीछे बनेगी, on the back side of the mirror. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम किसकी एग्जांपल लेते हैं? प्लेन मिरर की, जो हम नॉर्मली घर पे यूज करते हैं. ओके, सो टिल image formation we have done. Now let's start with the next topic, that is the characteristics of image formation on plane mirror. तो जो आप प्लेन मिरर घर पे यूज करते हो, ठीक है, उस पे कैसी इमेज बनती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज एंड शेप, राइट? जितना आपका साइज है या जैसी आपकी शेप है वैसे ही नजर आती है. ओके, सो इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज एंड शेप एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो जैसा आप ऑब्जेक्ट लोगे, उसकी सेम साइज, सेम हाइट, वैसी ही सेम शेप जो है वो नजर आएगी, कोई चेंज नहीं होगा. द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल, ये मैंने आपको बता दिया है, वर्चुअल इमेज है, और इरेक्ट होगी, सीधी होगी. आप जब खुद को देखते हो तो सीधे नजर आते हो ना आप उसमें, इमेज में. यस, ठीक है, तो सीधी होगी.
The image is formed at same distance from the object. Okay. अब इसका क्या मतलब है? That is formed at the same distance from the mirror. That is formed at, यहाँ पे मैं image की ही बात कर रही हूँ, ठीक है? So don't forget, image is formed at the same distance from the mirror as that of object. Now let me explain this point. मैंने आपको कल बताया था कि जो आपकी virtual images होती हैं, they are formed on the back side of the mirror. Mirror के पीछे बनती हैं. Okay? अब मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? Suppose here is my mirror. और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है कोई भी ए. अगर मेरे ऑब्जेक्ट का और मेरे मिरर का जो डिस्टेंस है, सपोज लेट इट बी 8 सेंटीमीटर. ओके, ऑब्जेक्ट का और मिरर का जो डिस्टेंस है लेट इट बी 8 सेंटीमीटर. तो जो आपकी इसकी इमेज बनेगी, जो मिरर के पीछे बनेगी, उसका भी जो डिस्टेंस है मिरर से वो भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर. This is the meaning of this line. So the image formed at the same distance from the mirror as that of object. ठीक है? तो अगर ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस 8 है, तो आपके मिरर और इमेज का भी जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा? 8 ही होगा. ओके, अगर इनकी हाइट जो है सपोज 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी हाइट जो है वो सेम आएगी. फर्स्ट पॉइंट में जो हमने बताया है, साइज और शेप जो है वो सेम रहेगी. समझ आया बेटा? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो मिरर से ऑब्जेक्ट और मिरर से जो इमेज का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा. राइट? नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट. द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. फिफ्थ पॉइंट है ये, और फोर्थ पॉइंट. इमेज इज laterally inverted with respect to the object. Now what is called as lateral inversion beta? क्या होता है lateral inversion? Yes, anyone? What is lateral inversion? ओके, अमरजोत बोलिए बेटा. यस, बोलिए अमरजोत. गौरीश बोलिए. Yes, ma'am. Ma'am, like left side to right side and right side to left side. Okay. So lateral inversion is basically the reversal of the mirror images. जो आपको लेफ्ट साइड है वो राइट में नजर आएगी, ठीक है? जो राइट साइड है वो लेफ्ट में नजर आती. ओके, so that is more common in case of the word ambulance. अगर आपने एम्बुलेंस देखा हो तो उसमें जो एम्बुलेंस का वर्ड है वो उन्होंने उल्टा लिखा होता है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, ताकि जब आप उसको अपने मिरर से देखो, that will appear to you as the right. ओके, तो जो उसकी लेफ्ट साइड है वो आपको राइट में नजर आएगी और जो राइट है वो आपको लेफ्ट में नजर आएगी. सो दैट्स व्हाई यू विल बी एबल टू रीड दैट एज एम्बुलेंस. ओके, so that is called as lateral inversion. So you can write down that is the reversal of the mirror images. What is lateral inversion? That is the phenomena of reversal of the mirror images. Okay, that is the phenomena of reversal of the mirror images where
where the right side of the object appears on the left side and vice versa. Where the right side appears on लेफ्ट साइड एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब यहाँ पर क्या है, अब आपने उल्टा करके लिख देना है. द लेफ्ट साइड इट विल बी विजिबल ऑन द राइट साइड. Okay, the left side will be visible on the right and the right will be visible on the left. Okay, is this clear? हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा. तो जैसे एम्बुलेंस का ही वर्ड है, तो जब आप इसकी इमेज देखोगे तो वो आपको ऐसे नजर आएगा कुछ. राइट, लाइक दिस. ओके, ए ही रहेगा, एल आपको ऐसे नजर आएगा, यू विल बी सेम, बी ऐसे नजर आएगा. ओके, एम विल बी सेम एंड ए. Is this clear? So this is the lateral inversion phenomena. हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा. तो जब आप यहाँ पे मिरर रखोगे, ठीक है, यहाँ पर जब आप मिरर रखोगे तो आपको ये सारा सही नजर आएगा. So this is mirror. तो ये एक्चुअली सपोज अगर मैं खड़ी हूँ ऐसे, सो दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड. ये लेफ्ट साइड अब आपको पहले नजर आएगी, राइट साइड जो है वो बाद में नजर आ रही है. ओके, सो दिस इज अ फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्जन. Okay, so till now we have done the lateral inversion and the characteristics of the plane mirror. Now coming to the next are spherical mirrors. अब हमने देखना है कि कौन कौन से तरह के मिरर्स होते हैं. So we are having the spherical mirrors. Okay. So spherical mirror, it is actually the mirror whose smooth and polished surfaces they are curved. ठीक है, तो ये spherical mirror जो होते हैं, इनकी जो polished surfaces हैं या smooth surfaces जो हैं, they are curved. सीधी नहीं होती हैं. जैसे मैं अभी आपको सीधा मिरर दिखा रही हूँ ना, like this, they are not straight. Okay, their surfaces, they are bit curved. So spherical mirrors, they are the mirrors whose smooth and polished surfaces, they are curved surfaces. अब कर्व जो है वो दो तरह से होती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है. ये दो तरह से कर्व होती हैं. Yes, they are also known as curved mirrors. Okay, spherical mirrors या curved mirrors भी आप कह सकते हो. Okay, now these spherical mirrors जिनकी smooth polished surfaces curved हैं, they are of two types, concave mirror and the convex mirror. तो ये जो मिरर्स हैं आपके, ये दो तरह के हैं, कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर. Now out of these two, this and this, एक हम बनाएंगे कनकेव और एक हम बनाएंगे कन्वेक्स. Now in case of concave mirror,
इन केस ऑफ कनकेव मिरर, जो इसकी पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस है वो अंदर वाली है, इनवर्ड, ये वाली जो सरफेस है, ओके, दिस इज स्मूथ एंड पॉलिश्ड। जो बाहर वाली है ये स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस नहीं है, ओके। यानी कि जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो इसके इस पार्ट पे स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? लाइट जो है वो उसके अंदर वाले पार्ट पे रिफ्लेक्ट करेगी और जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज नॉट पॉलिश्ड एंड स्मूथ, राइट। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर जो लाइट है ये इनके बाहर वाले पार्ट पे स्ट्राइक करेगी, जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज नॉट स्मूथ एंड पॉलिश्ड। तो ऐसे इज दिस क्लियर? इतना समझ आया? पहले ये बताओ, आपने दोनों में स्मूथ पॉलिश्ड सरफेसेस देखनी है। कनकेव मिरर के केस में जो अंदर वाली है वो स्मूथ है, कन्वेक्स मिरर के केस में जो बाहर वाली है वो स्मूथ है। Now, in order to demonstrate this, I am having a ball here. Can you see? Is this representing a curved surface? Curved surface की example represent कर रही है कि नहीं? Okay. Now see, it is hollow from inside. अंदर से खाली है। अगर लाइट जो है वो अंदर वाले पार्ट में रिफ्लेक्ट हुई, दिस पार्ट, तो ये पोर्शन कौन सा है इसका? दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ। If the light is striking this part, this will represent which mirror? कौन सा मिरर रिप्रेजेंट करेगा? जो अंदर में हो रही है, that is concave mirror. अब अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं और लाइट जो है इसको आके यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये वाला पार्ट इसका कौन सा मिरर रिप्रेजेंट करेगा? कन्वेक्स मिरर। Is this clear now? Understood? Understood? Right? तो अगर लाइट जो है वो अंदर वाले पार्ट में रिफ्लेक्ट कर रही है तो दैट इज द कनकेव मिरर, और अगर लाइट जो है वो बाहर वाले पार्ट में आके रिफ्लेक्ट कर रही है दैट इज द कन्वेक्स मिरर, ओके। सो एक डेफिनेशन में लिखवाऊंगी, दूसरी आपने अपने आप लिखनी है, ठीक है। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कनकेव मिरर। सो द spherical mirror, concave mirror, it is a part of spherical mirror whose smooth or polished surface is curved inward, अंदर की तरफ है, और कन्वेक्स के लिए आपने आउटवर्ड लिख लेना, ओके। So a spherical mirror whose smooth and polished surface or reflecting surface is curved outward, that is convex mirror. तो you can also make this at your home. मैंने कल आपको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन वाली एक्टिविटी करवाई है, ये भी एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो। आपने एक हॉलो बॉल लेनी है, ओके, और उसको कट कर लेना है, राइट। The one portion is representing the concave mirror and the second portion is representing the convex mirror. Now, in the beginning of your class, right, when you people joined, I asked you to collect a spoon. All of you are having spoon at this time, right? So this portion of the spoon is representing which part? This portion. If the light is hitting this part, if the light is hitting this part, this is representing which spherical mirror? Concave. Very good. And if the light is hitting this part, this is representing which mirror? Convex. Now just hold the spoon in front of yourself. आपने ये स्पून जो है वो अपने आगे होल्ड करना है, होल्ड द स्पून इन फ्रंट। अगर आप सारे वीडियोस ऑन करोगे बेटा, देन आई विल बी एबल टू सी कि सारे आप लेके आए हो। यस, you all are having spoon, okay? Yes. So just see the image formation in both the cases.
दोनों केसेस में देखो इमेज जो है वो कैसी नजर आ रही है आपको। अगर आप स्पून को ऐसे होल्ड कर रहे हो इस साइड से, जब आपकी लाइट जो है वो इस साइड को रिफ्लेक्ट करेगी, सो व्हाट टाइप ऑफ इमेज यू सी, कैसी नजर आई आपको? इज योर इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, सीधी है कि उल्टी है? एनीवन, यू कैन रेज योर हैंड्स। ओके गौरीश, फॉर द कन्वेक्स साइड, फॉर द कनकेव साइड पहले बताओ। चलो कनकेव साइड के लिए जो आपकी इमेज है वो कैसी आई? मैम वो इरेक्टेड आई है, लाइक नीचे की तरफ। नीचे है तो वो इन्वर्टेड होती है, इरेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड, सॉरी इन्वर्टेड आई है। इन्वर्टेड। कार्तिक, व्हाट इज द साइज? बड़ी है छोटी है? यस मैम। जो आपकी इमेज आई है वो बड़ी है या मैम छोटी आई है? मैम ये थोड़ी सी मतलब बड़ी आ रही है, थोड़ी जूम हो रही है। एनलार्ज्ड, ओके एनलार्ज्ड, राइट। तो पहले गौरीश ने कहा है कि इन्वर्टेड आई है, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू कार्तिक इट इज एनलार्ज्ड, थोड़ी बड़ी है, ओके। ओके नाउ लेट्स मूव टू द कन्वेक्स मिरर नाउ। यस जैस्मीन, कन्वेक्स मिरर में आपको कैसी इमेज लगी? मैम ब्रॉड, कन्वेक्स साइड इमेज मैम सीधी है पर ब्रॉड आ रही है। सीधी है पर मैम ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब Broad. थिक है। ब्रॉड एंड यस मैम। ओके चलिए, कन्वेक्स के केस में यू आर गेटिंग द इरेक्ट इमेज, सीधी आई है। यस साइज मैम। बताइए बेटा। यस स्वाव्या, साइज बताओ, इमेज का साइज कैसा है, छोटा है कि बड़ा है? जो आपने पहले देखी उससे छोटा है कि बड़ा है? मैम उससे बड़ा है। उससे बड़ा है। यस मैम। यस मैम, थोड़ा जूम आउट हो रहा है, मतलब Yes, जूम ma'am. इन हो रहा है, सॉरी जूम इन हो रहा है थोड़ा सा ना, मैम लाइक पर जो मतलब जो कनकेव का था उसमें थोड़ा सा मतलब पिक्चर बड़ी, इसमें थोड़ा जूम हो रहा है, पर वो एग्जैक्ट साइज ही दिख रहा है हाँ फोटो का। एग्जैक्ट साइज नहीं दिखा रहा, वो थोड़ा छोटा साइज दे रहा है आपको, राइट। अगर आप एक ही पोजीशन से देखो, अगर आप उस पोजीशन को हिलाओ ना मत, एक ही पोजीशन पे उसको सेट करो, ठीक है, स्पून को, और उसी से ही देखो कि जब आप उसको कनकेव से देख रहे हो और जब आप उसको कन्वेक्स से देख रहे हो, क्योंकि आगे पीछे करोगे फिर तो साइज डेफिनेटली चेंज होगा ही, ठीक है। उसको एक पोजीशन पे सेट करो और फिर देखो दोनों में कि क्या डिफरेंस है, किसमें इमेज बड़ी है, किसमें इमेज जो है वो छोटी है। हाँ जी देखो 2 मिनट और मुझे बताओ। सीन कर लिया सबने ऑब्जर्व? चलो अक्षरा बताएगी। यस अक्षरा, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व? Ma'am, in concave, the picture is inverted and it's large, and in convex, थोड़ी सी छोटी है but सीधी है, ओके, erect है. इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड लिख सकते हो, स्मॉल इन साइज लिख सकते हो। ओके, ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस ऑब्जर्वेशन और नॉट? किसी की कोई अलग ऑब्जर्वेशन हो बेटा? ओके राइट। अब मुझे ये बताओ, वी हैव डिस्कस्ड 2 पॉइंट्स यूजिंग द स्पून एक्टिविटी, कि यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन जो है वो कैसी होगी इन द कनकेव मिरर एंड इन द कन्वेक्स मिरर। नाउ कैन एनीवन टेल मी दैट आउट ऑफ convex and concave mirror which will form the real image and which will form the virtual image? Which will form the real image, concave mirror or convex mirror? जी हरमीत बोलिए। मैम कन्वेक्स। ओके कन्वेक्स। हाँ जी कार्तिक। मैम कनकेव करेंगे क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। वेरी गुड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ओके तो कनकेव मिरर जो है वो हमेशा आपको कैसी इमेज देगा? रियल इमेज देगा। और जो आपका कन्वेक्स मिरर है वो आपको कौन सी इमेज देगा? वर्चुअल इमेज देगा। वर्चुअल। इज दिस क्लियर? हाँ जी, इज दिस क्लियर बेटा? राइट यस मैम। चलो
So I hope the activity is clear to you and the image formation in case of concave and convex mirror is clear to you. This you will be writing in your activity also. ठीक है, तो आपकी ये एक्टिविटी फाइल पे भी आपने लिखनी है. I'll tell you, right? तो यही एक्टिविटी अगर आप लिखोगे इसी वे से, right? Because we have performed this activity also. Now you can write down easily. लिख सकते हो ना? Okay, तो image formations मैंने बता दिए. Now there are some of the terms that are actually associated with the spherical mirrors. तो हमने कुछ terms जो हैं वो डिस्कस करनी है spherical mirrors की. So write down the next topic, terms related to spherical mirror. All of you can lower your hand if you have raised them for giving the answers. So the terms that are related to spherical mirrors, उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे center of curvature. Center of curvature, that is C. Capital C से हम इसको denote करेंगे center of curvature को. So you have seen this ball, आपने देखी, इसका second end मेरे पास नहीं है. Okay, so assume it as a whole ball. ठीक है, कि इसका सेकेंड एंड भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है. तो आपको ये एक बॉल नजर आ रही है, कंप्लीट बॉल है. ठीक है, तो कैन आई शो दिस बॉल लाइक दिस? अगर आप इसको देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा ना जब इसके दोनों एंड्स कंबाइन हो जाएंगे. व्हेन यू कंबाइन इट्स बोथ एंड इट विल बी विजिबल टू यू लाइक दिस. ओके, तो इस बॉल का जो सेंटर है, जैसे सर्कल का सेंटर होता है, वैसे ही ये जो मैंने यहाँ से कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स डिराइव किए हैं, इसका जो बॉल का सेंटर होगा, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इज दिस क्लियर? सो दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ द स्फीयर. जब मैं इस बॉल को ज्वाइन कर दूंगी तो एक स्फीयर देगा ना ये मेरे को. ओके, तो उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो दैट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट. इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज डिनोटेड बाय सी. ओके, स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. मिरर का सेंटर, जो दो मिरर्स हैं हमारे पास, एक है कनकेव मिरर एंड दूसरा है कन्वेक्स मिरर. जो मिरर का सेंटर है दैट इज पोल. जो मिरर का सेंटर है उसको हम क्या कह रहे हैं? पोल. राइट, तो अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं और मेरे पास दो बॉल्स आ जाएंगी, राइट, तो ये और ये मिरर्स के सेंटर मुझे क्या दे देंगे? पोल्स दे देंगे. अगर मैंने यहां से इसको ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है इसको, ठीक है, तो मेरे पास अब ये दो एंड्स आ गए हैं ना. आई एम हैविंग टू एंड्स ऑफ दिस बॉल नाउ. तो ये जो इसका सेंटर है यहाँ पर, दिस सेंटर, इट इज नोन एज पोल. क्लियर? सो पोल क्या है? सेंटर ऑफ द, यस, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. The center of the spherical mirror is known as the pole and that is denoted by P. Confusion तो नहीं है C और P में बेटा? C आपने पूरा ज्वाइन कर देना है. जो स्फीयर एक बॉल मिली है उसका सेंटर है. फिर आपने उस बॉल को ब्रेक कर देना है और आपके पास दो मिरर्स आ गए हैं. जो मिरर का सेंटर है दैट इज पोल. क्लियर? Now the third thing now, अब ये मेरे पास C है, ये P है. अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगी by using a line.
मैंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है, आर्बिट्ररी लाइन बनाई है। इमेजिनरी मतलब दैट इज नॉट द इनफैक्ट और रियल लाइन, ये हम एज्यूम करते हैं कि मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। तो ये जो लाइन है, द इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट्स सी एंड पी, दोनों ज्वाइन हो गए ना। जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो दोनों C और P जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। सो द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द C एंड द P ऑफ द मिरर इज नोन एज, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन है PC, CP कुछ भी आप कह सकते हो, अगर आपने CP कहना है यू कैन कॉल इट CP आल्सो। सो दैट इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू, आप पूरा लिख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ओके, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर and pole, that is called as principal axis. Okay,